پر کیا کچھ کہیں گے عارف صاحب؟ ڈرامے کو لے کر کیا کہا گیا ہے؟ کیونکہ ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ڈرامہ بھی ایک الگ طرح کا ریپرزنٹیشن ہے، فلموں سے الگ ہٹ کے ڈرامے کو لے کر کیا نوعیت ہے؟ اور پہلے کے دور میں بھی کیونکہ ہم دیکھتے تھے کئی چیزوں کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور پھر جانکاری فراہم کی جاتی تھی، اسی طرح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی قسم کا کوئی پریزنٹیشن کے طور پر ڈرامائی پیشکش بھی موجود تھی؟ کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ایکٹنگ، ڈرامہ یا فلم انڈسٹری سے متعلق جو معاملات ہیں تو اس میں علماء کا کافی اختلاف رہا ہے، اور ایکٹنگ اور ڈرامہ ہی نہیں بلکہ سرے سے ٹی وی کے استعمال پر بھی جو ہے کافی اختلاف رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ براہ راست ایکٹنگ اور ڈرامہ کے تعلق سے قرآن اور احادیث سے کوئی پیغام بالکل واضح طور پر خاص اسی کے لیے ایسے نہیں آئے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہر ایک کا اپنا نظریہ اور نقطہ نظر الگ الگ ہوتا رہا ہے، اور اسی نقطہ نظر سے علماء بحث کرتے رہے ہیں، احقاق حق اور ابطال باطل کرتے رہے ہیں۔ لہذا جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ فلم انڈسٹری آج کے دور میں ایک جدید دور کا ذریعہ ابلاغ ہے، بہت ہی اہم ذریعہ ابلاغ ہے، اور یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے جو معاشرے پر مثبت یا منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ لہذا جو ہے جو تفریح، تعلیم اور دینی دعوت کے لیے استعمال ہو تو ان کا شرعی حکم جاننے کے لیے ہمیں قرآن حدیث اور اقوال فقہا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اللہ کا وہ مقدس کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرما کر دین مکمل فرما دیا۔ تو اب جو بھی رہنمائی ہمیں حاصل کرنی ہوگی وہ اسی قرآن سے ہی ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، اور قرآن قیامت تک کے آنے والے تمام مسائل کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور رہنمائی کرتا رہے گا، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور ہمارا ایمان اسی کتاب پر ہے، اس کے ایک ایک حرف پر ہے۔ لہٰذا علماء نے جو استنباط کیا ہے، علماء نے جو بیان کیا ہے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر غوث محمد صاحب نے آیت کریمہ پیش کی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، تو یہ آیت مومنین کو پردہ اور عفت کے تحفظ کا حکم دیتی ہے۔ تو فلم انڈسٹری میں اگر فلمیں یا ڈرامے عریانی، فحش مناظر یا مرد و زن کے غیر شرعی اختلاط کو دکھاتی ہیں تو وہ اس آیت کے منافی ہوں گی۔ ایسے ہی ایک آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یعنی لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو باطل بات کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بغیر علم کے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک خاص لفظ ہے لہو الحدیث، تو مفسرین اکرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں ایسی سرگرمیوں کو شامل کیا گیا ہے جو وقت کو ضائع کریں۔ اب فلم انڈسٹری کو دیکھ لیں تو فلم انڈسٹری میں اگر فلمی ڈرامے غیر اخلاقی پیغامات، عریانی، موسیقی یا غیر شرعی اختلاط پر مشتمل ہوں تو وہ اس آیت کے تحت ناجائز ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی جدید فلمیں جو رومانس برے مناظر یا فحش مواد کے ذریعے شہوت کو ابھارتی ہیں جو شریعت کے منافی ہے، تاہم اگر فلمیں دینی اقدار یا تعلیمی مواد کو فروغ دیں، جیسے کہ ایک مووی ہے دی میسج جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہے، تو ان کی گنجائش علماء نے نکالی ہے، اس کی گنجائش
निकल सकती है। इस फिल्म में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर कशी से इज्तिनाब किया गया है, जो और बात करेंगे आरिफ साहब इस पर, लेकिन एक कॉलर है, आगे अपने मौजू पर बात करेंगे। जो कि आरिफ साहब, ये तो हमने बात की कि किस तरह से ड्रामे या एक्टिंग से जुड़ी चीजों को देखना, लेकिन कुछ लोग अब जो खास करके नौजवान हैं वो इसे एज अ प्रोफेशन भी चुन रहे हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में और अलग अलग जगहों पर थिएटर्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। थिएटर्स में अलग अलग ड्रामे किए जाते हैं, वहां पर एक्टिंग की जाती है और उसमें लोग शामिल होते हैं। और दूसरी तरफ एक्टिंग को भी एज अ करियर क्या इख्तियार किया जा सकता है? क्या इसमें इस्लाम की इजाजत है? देखिए, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं, तो हम एज ए मुस्लिम, एज ए मुसलमान बैठे हुए हैं, और जो भी कुरान और हदीस के अहकाम है वो अहले ईमान से मुताल्लिक है। जो अल्लाह और उसके रसूल पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, उन पर शरीयत लागू होती है। मसलन हम बता दें आपको कि शराब पीना इस्लाम में हराम है, तो मुसलमानों के लिए हराम है। अब अगर गैर मुस्लिम अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो उसका अमल वो जाने। लिहाजा जहां तक हम अपने अहले ईमान भाइयों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग हो गया या कैमरा वर्क हो गया या एडिटिंग जैसे शोबों में काम करने वाले जो हैं, तो उनको भी जरूरी है कि वो शरई अहकाम का इल्म हो, और ये अहकाम इस बात पर मुनहसिर होते हैं कि ये शोबा किस किस्म के मवाद से मुताल्लिक है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी नेकी और तकवा में एक दूसरे के साथ ताउन करो और गुनाह व ज्यादती में एक दूसरे का साथ ना दो। अब ये आयत वाज़ेह करती है कि अगर एक्टिंग, कैमरा वर्क या एडिटिंग ऐसी फिल्मों या ड्रामों के लिए हो जो फहाशी, गैर शरई इख्तिलात या गैर अखलाकी पैगामात को फरोग देती हो, तो ये गुनाह में ताउन है और नाजायज है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, एक आयत पाक है, इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून, यानी बस झूठ वही लोग गढ़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, और वही झूठे हैं, पक्के झूठे हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है। तब एक्टिंग में अगर झूठ या फरेब शामिल हो, जैसे कि गैर अखलाकी किरदारों की अक्कासी या गुमराह कुन पैगामात, तो ये नाजायज है। मिसाल के तौर पर ऐसी फिल्में जो झूठे अकायद या गैर शरई अक़दार को फरोग देती हैं, इस आयत के तहत ममनू है। लेकिन अगर एक्टिंग महज एक फन के तौर पर हो, जैसे कि तारीखी किरदारों की अक्कासी बगैर झूठ के, तो यह जायज हो सकता है। मिसाल के तौर पर फिल्म द मैसेज है, इसमें सहाबा इकराम के किरदारों की अक्कासी एहतराम के साथ की गई है, जो शरई तौर पर जायज समझी जा सकती है। जी, कुछ कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। आरिफ जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक सवाल सूर्य कौसर को लेकर कहा गया था, सूर्य कौसर के हवाले से रहनुमाई फरमा दें, और क्या इसको कब कब पढ़ा जा सकता है, किस लिए भी ये काम आती है? सूर्य कौसर। सूरह कौसर जो है वो इंतहाई फजीलत वाली सूरत है, और ख़ास तौर से इसका जो शान नुज़ूल है वो ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादगान का जब इंतकाल हो गया, तो अहले मक्का ने आपको अबतर कहना शुरू कर दिया, यानी आपका सिलसिला मुनक़ता हो गया कि अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बातें पहुंची कि लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए, और अल्लाह ताला ने उस मौके पर हजरत जिब्रील अमीन को बारगाह रिसालत में भेजा सूरह कौसर देकर, और फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया है। अब कौसर जो है वो जन्नत का वो हौज भी है, जो जिसमें कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को जो है खास प्याले से, अपने दस्ते मुबारक से जो है सैराब फरमाएंगे। और कौसर का मतलब ज्यादती भी होता है, और इस तरफ भी इशारा है कि ऐ महबूब आप रंजीदा खातिर ना हो,
जो आपको अख्तर कह रहे हैं ये नहीं जानते हैं, और आपकी ज़ुर्रियत में इंशाअल्लाह ताला इतनी कसरत होगी कि रहती दुनिया तक जो है वो कसरत वो आपकी औलादें रहेंगी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस नमाजें पढ़िए, कुर्बानी दीजिए। और अबतर तो असल वो है जो आपको कह रहे हैं, असल नस्ल कटे हुए तो वो है जो आपको कह रहे हैं। लिहाजा ये जो सूरह कौसर है बड़ी ही बाबरकत है, इसको पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर मुलाकात होगी और कब्र में नूर का सबब बनेगा। और अगर कोई शख्स इसका विर्द करता है और मामूल में लेता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकतें भी अता फरमाएगा और तमाम आफतों और बलाओं से उसको निजात भी अता फरमाएगा। और कोई सवाल? जी जी। और वहीं ये इसको लेकर भी सवाल किया गया था मौलाना साहब, ये जो वालिदैन माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं उन पर जुल्म करते हैं। हालांकि ये सवाल कई बार सामने आया है और इसका जिक्र भी किया गया है, लेकिन आज फिर से इस सवाल को पूछा गया है। क्या ये पूछना चाह रहे थे वो कि ऐसे बच्चों के लिए सजा क्या है, क्या बताया गया है इस्लाम में कि अगर वालिदैन पे जुल्म किया जाएगा तो आपके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है? सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ही अफसोसनाक ये मामलात हैं। और आप ये समझिए कि एक बार आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत ही बदकिस्मत हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं। तो सहाबा बेचैन हो गए, परेशान हो गए, या रसूलल्लाह कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने माँ बाप को गाली दे? तो सरकार मदीना ने फरमाया, हाँ, अगर तुम किसी दूसरे के माँ बाप को गाली दोगे तो वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा, तो गोया कि तुमने खुद अपने माँ बाप को गाली दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयात मुबारक कुरान कहता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, वालिदैन से उफ भी मत करो, इसलिए कि तुम उनका एहसान कभी भी नहीं चुका सकते। माँ ने तुम्हें 9 महीने रहम में रखकर, अपने शिकम में रखकर तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त की, बाप ने तरह तरह की कुर्बानियां देकर तुम्हें परवान चढ़ाया है, और उसका सिला ये होना चाहिए था कि उनके साथ हुस्न सलूक करते। और अल्लाह ताला ने उस हुस्न सलूक की बरकत से जन्नत का वादा फरमाया अल्लाह के रसूल ने, हुमा जन्नत का, वो तुम्हारी जन्नत है। ठीक है।